So basically it will cover several dimensions, but I will cover very briefly and remain focused on some particular aspects, that how the technology change, because if there is no technology we will live as animals, and we are some of the human even living as animals. So you might have heard about Jarava community in Andaman Nicobar or in some other places. So how technology advancement affects economic activities, productivity, society, politics, imperialism, unemployment and production capacities. We shall also cover that how state means satta comes into picture. Because of technology, state comes into picture. If there is no technology, state will also not exist, like in our primitive society. So how state is coming into picture, then how finance is coming into picture. And then by using the role of state and finance, how can we achieve full employment and nation building. So with the help of these pictures, basically, I am trying to bring you in a very historical perspective, that start thinking from very primitive society where we are living as a hunter and food gathering society. We can't imagine any kind of nation, any kind of state when all people are living in this form. Then as some kind of advancement happens, here we started using some kind of technology, and we are taming animals. So we have increased our energy level. So production has gone up. Now when production has gone up, now one person, in this case, let's say they are a group of people, let's say 20 people. 20 people are capable to produce food for 20 people only. Then no state can exist, because for existing state you require another type of people. And once the production is happening because of technology, now 20 people can produce for 25 people. So now 5 people are spared. These can be employed some other places for some other purposes. So basically I am trying to capture with the help of these photographs this thing. Tools are changing over the time. Transport means are changing over the time, because as more production we have to cover more distance to have a trade, etc. Now in modern era, productivity is further enhanced. That how technology is changing on our cloth manufacturing, textile. Further, if we put efforts and put resources in use, we can do R&D to achieve these things. Now here what I am trying to say with the help of this picture, that as we have moved from animal power to steam power, now we are shifting from hunter society to primitive agriculture society to steam driven society. So energy is very large. So production capacity is very large. So now we are in this kind of production capacity, and these developments are happening primarily in the Europe. So European societies are converting themselves. They were living as a small kings, but they were trying to now organize at bigger level, and they are emerging as a nation basically. They are emerging as a nation. So these nations are emerging. It's from a small kingdom to very big king. And when big king means he has authority to mobilize the army from one location to another location and suppress other people or have a trade relationship according to their wishes. It means at large territory they can have a control and they can coordinate the relations or resources among each other. And basically this is the period where imperialism started. They started coming towards India and other places and started ruling other countries also. Now in this photograph I have just shown that how the energy transformation is taking place and concentration is going on. In this slide I want to show that as technology changes, complexity increases. Like you see at this board,
We don't know which company has manufactured and what are the components involved, from which country they are transported, where it is designed. So it becomes very complex. Here I have shown that these are the red portion countries of the world ruled by Britishers. Now I am talking about accounting, because whenever we want to exchange some goods, suppose I am a farmer and one is a shipman, doing some kind of shipping, some kind of fishing, we want to exchange goods each other. So if we are doing it simultaneously, it is called barter system. But if we are doing in a time period, suppose I am giving fish to him today in the expectation that after 3 months he will give me meat, तो इसका अकाउंटिंग बनेगी, लिखा जाएगा कहीं. अदरवाइज पता चला हमने उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, उस प्रॉमिस को ऑनर नहीं किया, तो अकाउंटिंग शुरू हुई सबसे पहले. ये ज़्यादातर ये इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने काम किया. सबसे पहले उन्होंने पाया कि मेसोपोटामियन सोसाइटी जो इराक के पास है, वहाँ इस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया. इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेशन तब शुरू हुआ जब हमारी फॉर्मल लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी. जब हमारी फॉर्मल लैंग्वेज शुरू नहीं हुई थी पर अकाउंटिंग शुरू हो गई थी. इट इज़ गोइंग लाइक दिस, आई एम नॉट टॉकिंग फर्दर. देन नेचुरली payment system is evolving from barter system to different type of money, and now latest is electronic money. So here I am trying to say that how it is evolving over the time. In India I got this slide. Initially we had, basically this is a silver bar, इसमें कुछ हाउसिंग हो रखी है. बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि हमें किससे कितना अनाज लेना है या कितनी शराब इससे ली है मैंने, कितना गेहूँ उसे देना है बदले में. ये इस तरह का रिकॉर्ड है बेसिकली. और ये इवॉल्व होते होते ब्रिटिश पीरियड में मनी में चला गया, पेपर मनी में. सो इन दी हिस्ट्री 3 टाइप ऑफ मनी एग्जिस्टेड इफ यू टॉक अबाउट मनी. वन इज क्रेडिट मनी, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अभी भी क्रेडिट मनी, जैसे बैंक से अपन लोन लेते हैं, क्रेडिट मनी. कमोडिटी मनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी, ऑल काइंड ऑफ कमोडिटी वर्कड एज मनी इन डिफरेंट सोसाइटीज इन डिफरेंट पीरियड. मीन्स टोबैको, टी, साल्ट, गोल्ड, कॉपर, कोका बीन्स, ये सी सेल्स, कौड़ी बोलते थे पहले, कौड़ी चलती थी एज मनी की तरह. इनफैक्ट कई जगह ये सिगरेट भी मनी की तरह यूज की जाती थी. Then in modern era means let's say 100 years back, we had paper money, but it was backed with gold. It was paper money, but if you give this paper money to central bank of that country, like let's say USA, they will give you some gold in return of that if you want. So this kind of money, also paper money existed, but supported with gold. What was the drawback of this money? That it was paper money. That if you need, let's say, suppose you have a situation where you need more money, state needs more money for some expenditure to do some work, then it can't do because it has to be backed with gold. And if gold is not there, it cannot be created. Now we have fiat money. What is fiat money? Means it is not backed by gold or any commodity. It is not backed by any commodity. It is issued by government. It is issued by government, and it is not backed by any kind of commodity. Any kind of commodity. This is the chart showing the evolution of money in USA, because USA was colony of Britishers. So I will talk only 2 points here. In 1933, this is very important period, and one is 1971 is a very important period. We will talk about latest one only. In 1933, we all know that USA was passing through Great Depression. What was depression? I will talk about later on. So unemployment was very high. And if we want to give them employment, we have to give them money. If we are living in a money-based society, we have to give them money. So how can you give money? You can't create more money because it has to be backed by gold.
So what was the rule? Rule was that 1 ounce gold, if there is a 1 ounce gold in a federal bank of USA, they can create $22. They created $22. Roosevelt was the president. He changed the rule. Now he told, now from today onwards, now we will create $34. Probably, I don't know whether it was 33 or 34. 34. Now government is having a lot of money. So they can give job to the people. So they started giving job to the people and depression was avoided. Anyway, now in 71, Nixon, very recent, Nixon was the president of the USA. Nixon was the president of USA. At that time, Americans, if they have dollar, it cannot be transferred into gold. If they go to bank and say that, okay, you take these $20 and give me gold, they won't give. That was not the rule for American. But for outside the American, for France or other country, if they go with gold, that was the commitment from USA. If they go with the dollar, they will give you corresponding gold. But government of USA spent lot of money and bought a lot of resources from the world. So these dollar came in world, and France understood this point, but he wanted to have gold. So he sent those dollars to USA and asked that you convert them in gold. Nixon refused. Nixon told it is a fiat currency now. It is a fiat currency. So from then onwards, now it is a fiat currency. Means government can create, USA government. What is the effect? That is another aspect. Government of USA can create any number of dollars. It is a fiat currency. Now I am trying to tell you, because this is a subject on which many economists, I met many JNU professor, DU professor, I listened them on TV, listened them on YouTube. They don't understand, I am telling you. Even they are professors, they have written several books, they have published several papers. What is the relationship between state and money? So, and taxation. Because if we say that government creates money, then why does it take tax? What is the purpose of being tax? And if I ask you, who is financing government of India, we will say that we are financing government of India through direct tax or indirect tax. So what is the issue? If government creates money and it needs money from us, then what is the problem? What is the issue here? We don't understand. So to understand what is the relation between currency, tax and state, I am giving this example, and this is example of 1850. In 1850, European companies came to India also. East India Company came here and captured our country. Similarly, other companies from the UK went to different countries. They captured some portion of Africa also. What was their aim? Their aim was to grow coffee over there. That company aim was to grow coffee over there and sell in European market. But when they entered in the Africa, when UK company came here, East India Company, we had a monetary system. But when they entered in Africa, there was no monetary system because they were living primitive society in a primitive manner. Means they used to make a hut. They had bow and तीर, जिससे थोड़ा शिकार कर लेते थे और फिशिंग कर लेते थे, छोटा सा खेत होता कर लेते थे और उसी में जीते थे. वहाँ कोई मॉनिटरी सिस्टम एक्सचेंज नहीं होता था, मनी एक्सचेंज नहीं होती थी, मनी से गुड्स एक्सचेंज नहीं हो रही. अब इन्हें काम कराना है तो हु विल कम फॉर वर्क? You have two options, either make them slave, hit them and force them to do the work. But they didn't follow this approach. They followed monetary approach. They asked them that you have to give this much ceiling. What is the ceiling? They didn't know. They didn't know money. Ceiling is one kind of money in terms of UK basically. जैसे अपने इधर पैसा होता ऐसे ही वहाँ पॉन्ड और सीलिंग होते थे. 1971 में वो बंद कर दिया गया.
उन्होंने कहा आप इतने सीलिंग दो, नहीं तो आपकी हट जला देंगे। हट टैक्स नाम से लगाया, क्योंकि वो हट में रहना चाहते हैं। तो अब उन्हें क्या करना पड़ा, दे वर फोर्स्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द स्टेट, दे वर फोर्स्ड टू वर्क according to wishes of the state to save their hut, So what was the purpose of taxation? Not to earn this ceiling, to get work done according to state wishes, right? And it lead to development of monetary system there. It will develop monetary system over the time. Now to understand this point further, is this point clear? What is the role of taxation in the society? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, स्टेट का रोल। अभी आप में से कोई ये पेपर लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास भी ऐसे 10 पेपर होंगे, पर मैं एक यहाँ गनर बिठा दूँ, एक ही दरवाज़ा हो, और वो गनर कहेगा आपको ये कागज़ लाना है, तभी आप बाहर निकल पाओगे। सडनली इट विल फाइंड वैल्यू। अब आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे। मैं कहूँगा आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो मैं आपको 1 दूंगा, और टीचर से कहूँगा ये न्यूमेरिकल का चेक करो तो आपको 2 दूंगा। तो ये वैल्यू, अभी ये वैल्यूलेस थी, अब ये वैल्यू आ गई इसमें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये ऐसे ही, अगर मैं कोई पैसे रुपए डाले नहीं है, वो रुपए भी बेसिकली यही है, ओवर द टाइम इवॉल्व होगा। ये जैसे ये इवॉल्व हो जाएगा, ऐसे वो ओवर द टाइम पिछले लास्ट 100 ईयर में या 150 ईयर में वो इवॉल्व हो गया है, राइट? So you can understand through this example that what is the role of taxation and state power. State is a powerful machinery. They can introduce this factor which can disturb our life. Suppose in modern world, if we don't have money, can you imagine our life? But say go 100,000 years back, if we don't have money, if we have some food to produce, we will live good life. There is no question of money, but now state has introduced this factor which is called money, which is otherwise it is a paper, but now it is a life for us. Now with the help of these 2 figures, I want to explain same thing. Most of the people believe, all economists, even many Nobel laureate, believe that federal government, this is USA, that's why they call federal government, we can call our Indian government or any government. Federal government takes taxes from the people and borrow money from the people and spend. If government wants to spend, it has to take the taxes from the people and it has to borrow from the people and spend. And this is the belief system which everybody is having. Almost all economists of our country believe in this way, to whom I met or I have listened, because it fits in our mind. क्योंकि हम भी जब से पैदा हुए हैं और जब से सुन रहे हैं, जब से कहानी सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सुनी और आगे सुनते, अपने बच्चों को सुनाते कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें खर्च करने के पहले चाहिए। अगर हमने लोन लेके खर्च कर लिया तो हम डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं। मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, अपने घर के अगेंस्ट में मॉर्गेज ले लिया, और अगर हम वो नहीं पटा पाए तो हम डिफ़ॉल्टर हो गए, मतलब रोड पे आ जाएंगे, मतलब आवर लाइफ विल बी स्पॉइल्ड। तो हमारा माइंडसेट क्या बन गया, खर्च करने से पहले पैसा चाहिए, वो अपना हो या उधार का हो तो हम ये सोच लें कि भाई ये पटा देंगे, हम नहीं पटा पाएंगे तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो यही माइंड ये माइक्रो पिक्चर है बेसिकली, यही माइंड ये चलती मैक्रो में। जो करेंसी इशूअर हैं हम यही उनमें लगा देते हैं, जो करेंसी इशूअर हैं हम, ये रुपये कहाँ से आता है, पहले तो इकोनॉमिस्ट से किसी से पूछ लो तो वो शुरू में नहीं बताएगा, फिर कहेगा अल्टीमेटली हाँ आता तो गवर्नमेंट से ही है, फिर वो कैसे आता है, फिर वो कुछ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उससे। सो बट हाउ डज इट वर्क? It works in this way. So this is not correct way, because of what reason? This does not explain then where this money is coming from.
क्या कभी भगवान ने पैदा कर दी थी मनी, या कभी गोल्ड के अगेंस्ट बना ली थी आपने तो आ गई थी, बस अब वही रिसर्कुलेट हो रही है कि ये चेंज हो रही है कि ये फिक्स है? ये डजंट एक्सप्लेन, इट डजंट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. Actually, it works like this one. All sovereign nation currency works like this one. This is a federal government. They have only right to create that currency. Suppose Indian government has right to create rupee. US government has right to create dollar. China government has right to create yuan. इसी तरह पॉन्ड है तो वो यूके क्रिएट कर सकती है, और कहीं से नहीं आ सकता. अगर और कहीं से कोई करता है तो वो इलीगल करता है. तो ये गवर्नमेंट स्पेंड करती है. This is dependent on some factor, which I will talk later. This is dependent on some factor. How much money should they spend? It depends on one factor. Then taxes. What is the purpose of taxation? Initially, purpose of taxation, हर टैक्स में क्या था? They wanted to introduce money, which is in control of the government, to get back done according to their wishes. दो पर्पज था. लेकिन अगर एक बार मॉनेटरी सिस्टम बन गया, जैसे अभी शुरू में तो ये पेपर को हमें देने के लिए डंडा लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार सबको जो इसकी वैल्यू पता चल गई कि इसी से हमारी लाइफ चलेगी, तो ये अब सोसाइटी में आ गई. तो टैक्सेस का पर्पज क्या है? अगेन टू डिस्ट्रॉय परचेजिंग पावर फॉर नेशन बिल्डिंग. मीन्स एक्सपेंडिचर इज आल्सो फंक्शन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड टैक्सेशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब टैक्सेशन क्या है? मान लो अपने कंट्री में ग्रोथ करना है, और अगर अपने कंट्री में लोगों की सैलरी किसी की 5 लाख हो गई, किसी की 10 लाख हो गई, किसी की 1 करोड़ हो गई, तो वो क्या खर्च करेगा? वो ऐसे गुड्स पे खर्च करेगा जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बाहर बन रहे हैं. तो किसका डेवलपमेंट होगा? बाहर का. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, तो उस पर क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी या बैन ही कर सकती है. तो टैक्सेशन का पर्पज ये है यहाँ पे. ठीक है. वंस वी हैव डेवलप्ड मॉनेटरी सिस्टम, देन पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू डिस्ट्रॉय परचेजिंग पावर, to control the economic activity within the nation. Now I am telling you this example. Budget balance. Simple equation. Budget balance is equal to government revenue, means taxation or some other form, taxation, and government expenditure. This I am talking about any country which is the sole proprietary monopoly of that currency. जैसे ये इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है, ये यूएस गवर्नमेंट हो सकती है, दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है. If budget balance is equal to R minus E, revenue means taxation and expenditure. If it is greater than 0, it is called surplus. If it is less than 0, it is called deficit. Most of the time, 99% time, all governments, I am talking about central government of all country, they go in budget deficit mode. All time, almost 99% time. And this is balanced budget. If BV is equal to 0, it is a balanced budget. Now see the effect of this on this graph. If government is in deficit, then B will be in surplus. B people means B people. If you are talking about India, if you are talking about USA, if government is in deficit, then American people will be in surplus. If government is in surplus, then US people will be in deficit. Means what will happen if there is a deficit, continuously deficit, fiscal deficit is there, then if you, let's say at this point, if you add all the financial asset means money in the pocket or in our home or in our bank deposit. Money, I am talking about money, not house, not clothes, which we have purchased through money. If you add this money in our pocket, cash or bank deposit of US people, let's say we are talking about USA, then this is amount they have. And correspondingly they have deficit, cumulative deficit over the time. If you put a mirror here, this will be same, and if you add them, it will be 0. Now what is another argument to explain this? I will show you with the help of data also, because I have the data of USA. इनके पास डॉलर आया है लोगों के पास, और इस समय इतना है. ये कहाँ से आ सकता है? ये सिर्फ लॉजिक से बात करेंगे. डॉलर कहाँ से आ सकता है? पूरे दुनिया में डॉलर कहाँ से आ सकता है? When US government
क्रिएट्स इट एंड डोंट टेक इट एज ए टैक्सेस, डोंट टेक इट एज ए टैक्सेस, तो वो लोगों के पास रह जाएगा। जितना टैक्स में चला गया वो तो चला गया, जितना बचा रहा वो यहाँ लोगों के पास। और ये हमेशा यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस जोड़ दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। बहुत से लोग जो कहते रहते अरे सेंट्रल अमेरिका पे इस समय 35 ट्रिलियन डेट हो गया, डूब जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास तो अगर 1 ही लाख डेट हो गया तो हम डूब जाएंगे, तो अमेरिका पे तो 35 ट्रिलियन डॉलर हो गया, डूब जाएगा। पर उनसे पूछा जाए कि ये 35 ट्रिलियन डॉलर कहाँ से आए, तो ये यूएस गवर्नमेंट से ही आए, वो अभी डेप्ट के रूप में है। क्योंकि ये बेसिकली आप देखो मनी पे क्या लिखा हुआ है, जैसे इंडिया रुपी अगर आप देखोगे कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनस हो गया, क्योंकि जो उसका प्रॉमिस हो गया, तो वहाँ के रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, माइनस उनकी अकाउंटिंग में, और अपने अकाउंटिंग में इस समय प्लस हो गया। अब इन दोनों को जब भी जोड़ दोगे जीरो हो जाएगा। सेकंड, अगर बजट डिफिसिट जीरो रहे तो लोगों का पैसा ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा और गवर्नमेंट का डेट ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा। इफ गवर्नमेंट गोज इन सरप्लस, if government goes in surplus, then government debt will reduce and people's money will also reduce. It will go in this direction, and time may come then people's money is zero and government debt is zero. Any question up to this point? So I'll finish as quickly as possible for some discussion. Now this is the data from US government side. Whenever there is a deficit in the government, this is written in terms of percentage of GDP, there is a rise in people's money, and when they go in a surplus, there is a fall in people's money that year. But this is still not mirror image. This is still not mirror image. What is the reason? Because this dollar is used by other countries also. Means इंडिया की गवर्नमेंट के पास भी कुछ डॉलर होगा, मीन्स यहाँ के RBI के पास, चाइना के पास भी होगा, रसिया के पास भी होगा, जो रसिया का जीरो कर दिया वो, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में है, आपने उसे जीरो कर दिया वो जीरो हो जाएगा, $700 बिलियन जीरो। दिस इज परफेक्ट मिरर इन दिस USA डॉलर। दिस रेड वन इज शोइंग deficit in percentage of GDP term in that fiscal year, and this blue one is showing the people's money in that particular year goes up or goes down, and this green one is showing current account deficit of USA. What is the meaning of current account deficit of USA? If government of USA, let's say USA, exporting $100 amount of goods and importing $120 of goods, then $20 is a current account deficit. तो $20 कहाँ गए? क्योंकि 100 के उसने एक्सपोर्ट किया, 120 का इंपोर्ट किया, तो $20 उस कंट्री को चले गए या उस कंपनी को चले गए, तो उसको हमने प्लस साइड बन के शो किया हुआ है। अब अगर इस दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे मिरर रखोगे, तो ये मिरर इमेज बनेगी। मीन्स इस समय गवर्नमेंट का, और ये इक्वेशन क्या बनेगा, प्राइवेट का मनी जोड़ लो आप, पूरे दुनिया में वैसे मेनली अमेरिका में डॉलर, और गवर्नमेंट के डॉलर विथ साइन, अगर गवर्नमेंट का डिफिसिट है तो माइनस और सरप्लस है तो प्लस, और फॉरेन के साथ, फॉरेन का हमने ऊपर बनाया हुआ है कि ये 20 है तो ये यहाँ +20 है। अब इन दोनों को, तीनों को ऐड करोगे साइन साइन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि अगर मैं चाय बेचता हूँ, आप मेरी चाय पीने आए, तो आपने मुझे 5 रुपये दिए, तो 5 रुपये आपके माइनस हो गए, मेरे प्लस हो गए, और मेरे बदले में आपको चाय मिल गई। कैपिटल अकाउंट जैसे सर अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते ना, तो अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया $100 का पूरे दुनिया में और इंपोर्ट किया $120 का, इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो $20 का उसे डिफिसिट हुआ। ये थोड़ा पुराना फिगर है, 2010 तक का है, इसके बाद ये 2019 तक का है। इसमें सेम इक्वेशन Printing the money, another is money circulation. हाँ, So money supply depends on circulation also. money circulation and money creation. Right now I am talking about money creation and where it is going and how this equation is fitting. Money circulation एक अलग चीज़ है सर, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे वो दूसरे फैक्टर आ जाएंगे उसमें। Now this is the नेशनल डेट। जब मैं गौरव के साथ बना रहा था
तो ये तो 2020 तक का था, तब वहाँ पे $27 ट्रिलियन का डेट था यूएसए पे, $27 ट्रिलियन का डेट था। अब वैसे 35 हो गया है, अब 35 हो गया है। और ये टैक्स जीडीपी रेशो कहाँ पहुँचा होगा मुझे पता नहीं है, मीन्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे, इस पॉइंट पे मिरर रखोगे, इस पॉइंट पे मिरर रखोगे, तो ये कर्व, सेम कर्व ऐसा जाएगा यूएसए का, ये इनका डेट होगा। और या ये अगर ये डेट शो कर रहा है तो ये इतने लोगों के पास पैसे होंगे वहाँ पे। ये अनदर डेटा है यूएसए का। ये मैंने एक ऑर्डर में बनाए। जब रूजवेल्ट वहाँ राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी क्रिएट करना पड़ी थी उन्हें, बिकॉज दे वांटेड टू गिव जॉब। तो आप देखिए उस समय बिलियंस डॉलर में चल रहा है। ये जीडीपी उस समय उनका था, मान लो $184 बिलियन 1943 में था। इस समय देखिए रिसीप्ट कितना आया, 13 बिलियन आया, और एक्सपेंडिचर कितना किया, 42। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी इधर है बेसिकली। 42 बिलियन गवर्नमेंट ने उस साल खर्च किया 1943 में, 13 बिलियन टैक्स के रूप में लिए। इनका डिफरेंस कितना था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 29.6%। और इसी तरह से मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है। ये जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब कोरोना आ गया 21 में, उस समय इन्होंने, मतलब इस समय $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई थी वहाँ, बिलियंस मतलब 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो 16.3 बिलियन, इसमें थोड़ी कुछ गलती हो सकती है, ये शायद इसमें कुछ गलत हो सकता है, पर ये सही है परसेंटेज। 29.6% जीडीपी, 22.2% जीडीपी, 16.7% जीडीपी, 14.9 and reducing -5.8. What is surplus and what is deficit here? Surplus deficit means if government is spending 100 rupees, Is it deficit of over GDP? What is it? surplus deficit in percentage of GDP, It is percentage. परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया $100 बिलियन और टैक्सेशन के लिए ये इसका एक्सपेंडिचर है, और $90 बिलियन उसने टैक्सेस में डिस्ट्रॉय किए करेंसी, तो $10 बिलियन का डिफिसिट हो गया। अब इसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी में लिख लो तो यहाँ ये लिखा हुआ है। इज इट ओके? Percentage is reducing. ये मैंने इसी ऑर्डर में बनाए हैं बेसिकली, मैंने लिखे हैं। ये तो बेसिकली अलग अलग ईयर है, 1943, 22, 20। मैंने ये बताने की कोशिश की है क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF इंडिया जैसे कंट्री पे दबाव डालती है, बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, थोड़ा बहुत नहीं, कि आप जीडीपी से 3% से ज़्यादा डिफिसिट ना करो। इनफैक्ट अपनी गवर्नमेंट ने एक रूल भी बनाया हुआ है, 2003 में एक रूल पार्लियामेंट में पास है, वो ओवरकम कर लेते हैं वो। तो दूसरे कंट्री को कहते हैं कि आप खर्चा नहीं करो, क्योंकि खर्चा नहीं करोगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, पावर्टी होगी, पावर्टी नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी, हमारे इधर अमेरिका में लोग आएंगे जॉब करने। दिस इज अनदर फिगर, सेम यूएसए 1919, 2009 भी है, 10 भी है, पर किसी ऑर्डर में नहीं है। यहाँ ऑर्डर इसमें ज़रूर है, यहाँ -260%। इसमें किस किस में डिफरेंस है, रिसीप्ट कितना आया मिलियन डॉलर, जैसे 1919 में $5130 मिलियन टैक्स आया, खर्चा कितना किया, $18,493 मिलियन खर्च किया। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने परसेंटेज में लिख रखा है, ये बताने के लिए कि कैसे मनी क्रिएशन हो रहा है, मनी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और कितना परसेंटेज वेरिएशन भी कर रहे हैं, उससे क्या अचीव कर रहे हैं, दैट इज अनदर पार्ट। मतलब ये हिस्टोरिकली हुआ है। अब देखिए ये बात इस एंगल से बहुत सारे अर्थशास्त्री नहीं जानते, और इसका उल्टा बताएंगे, डिफिसिट हो रहा मतलब बहुत खराब होने वाला है, देश डूबने वाला है। ये बात अगर बताई जाए कि ये बात तो किस ईयर में, देखिए सेंट लुइस 9th, ये फ्रांस का एक राजा था, ये 12 साल में राजा बन गया था और काफ़ी दिनों राजा रहा था। पहले इसकी मम्मी देखती रही, फिर ये खुद राजा बन गया। इसका स्टेटमेंट पढ़िए, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ किंग, क्योंकि आपने क्या किया है, किंग ने क्या किया है या स्टेट ने क्या किया है, हमारी लाइफ किस पे डिपेंडेंट कर दी। पहले जब लाइफ में स्टेट नहीं था तो हमारी लाइफ रोटी पे डिपेंडेंट थी, कपड़े पे डिपेंडेंट थी, और एक घर पे डिपेंडेंट थी।
अब कर दी मनी पे डिपेंडेंट। अब मनी से हम करते यही हैं, लेकिन वो मनी पे डिपेंडेंट कर दी है। ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग थ्रू मनी। तो जब आपने वो फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, तो अब देखो ये क्या लिख रहा है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ किंग इज टू कॉइन मनी व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर द साउंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वैसे गुलाम को बोलते थे, पर राजा तो सोचते थे हम तो भगवान के आए हैं, बाकी सब जनता है, उस सेंस में ये सब्जेक्ट वर्ड है। क्योंकि अगर आपने जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो अब आपके पास लोग हैं जिनसे आप कुछ दूसरा काम ले सकते हो। आप उन्हें R&D में लगा सकते हो, आप एजुकेशन में लगा सकते हो, आप हेल्थ केयर में लगा सकते हो, आप उन्हें पुलिस में रख सकते हो, मिलिट्री में रख सकते हो, गवर्नेंस में लगा सकते हो, MBA प्रोड्यूस कर सकते हो और अपनी प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्सपेंडिचर कटेल रखा तो क्या होगा, जो काम 5 लोग कर सकते हैं अब उसकी जगह 20 करेंगे। क्योंकि जब उसे मान लो मेरे घर में 1 एकड़ खेती है, हमें शहर में जॉब नहीं मिलता है, तो हम 4 भाई हैं, हम 1 एकड़ में ही काम करेंगे अब। और अगर 1 एकड़ से एक बंदा ही काम करके उतना पैदा कर सकता है कि 3 बंदे फ्री हो सकते हैं, लेकिन 3 बंदों को जब तक काम नहीं मिलेगा कोई, तब तक वो क्या काम करेंगे, अपनी लाइफ जीने के लिए वहीं पे काम करेंगे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इट इज नेसेसरी फॉर द साउंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट। साउंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स इट शुड हैपन कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुड गो अप। अगर हम एग्रीकल्चर से फ्री हो रहे हैं तो एजुकेशन में लगा दो, एजुकेशन हमारी अच्छी हो रही तो R&D में लगा दो। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा। नाउ हियर आई एम कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट because labor productivity is going up. So it is good and it is bad also. It is good if we are able to utilize these unemployed youth and give them some training and get some other work done. Then अपने देश में हेल्थ केयर अच्छी हो जाएगी, R&D इम्प्रूव हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज वो पॉवर्टी में चले जाएंगे। So provided there is a sufficient investment in education, R&D, healthcare, social and community infrastructure, training and skill development, the key challenge is managing the transition. Workers are displaced by technology, are able to move into new productive roles in evolving economy if we are having good kind of fiscal and monetary policy. अब मैं नेशन बिल्डिंग की कुछ बात करता हूँ जिन लोगों ने किया दुनिया में। बिस्मार्क जर्मनी का लीडर था एक, he lived there, मतलब he remained in power. He was not king, king कोई और था, ये स्टेटमेंट्स था, पर बड़ा पावरफुल था, चांसलर था वहाँ का। 1860 to 90 अपने देश से भी बुरे हाल थे। 29 छोटा सा जर्मनी है और उसमें 39 राजा हुए थे, उनकी अपनी टेरिटरी थी, उनकी अपनी यूनिट ऑफ अकाउंट्स थी, जैसे अपनी यूनिट ऑफ अकाउंट रुपी है ना, उनकी यूनिट ऑफ अकाउंट थी सबकी। तो इतने लार्ज कन्फ्लिक्ट थी उनमें, तो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल था। सो व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, कि उसने सबको यूनाइट किया एक तो, और एक यूनिट ऑफ करेंसी बनाई, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी, पूरी जर्मनी में एक करेंसी कर दी, तो अब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होना ईजी हो गया। दूसरा उसने क्या किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब यूरोप में ही तो टेक्नोलॉजी बनी, ठीक है, जर्मनी में नहीं बनी थी, पर वो एक्सपोज थे, तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, हमारे पास पैसे ही नहीं ना, और पता चला पास में स्कूल है, वो कह रहा है 1000 रुपये फीस लगेगी, तो हमारा बच्चा क्या करेगा, हम कहेंगे भाई ना जाओ, पढ़ो, यहीं रहो। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर दी। गवर्नमेंट की पहली बार, मतलब गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री की मास स्केल पे। तो एजुकेशन फ्री की इसने, हेल्थ केयर फ्री किया, पेंशन फ्री किया, पूरे दुनिया में पहली बार ओल्ड एज पेंशन जर्मनी में दिया गया। ओल्ड एज पेंशन सब जानते हैं कि ओल्ड एज में पेंशन मिलना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी को थोड़ी मिले भाई, प्राइवेट आदमी भी तो जीता है, तो उसे भी एक इज्जत से जीने के लिए पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो काम भी नहीं कर सकता। ओल्ड एज पेंशन की गई। अब इससे हुआ क्या, जब इन लोगों के पास पैसा आएगा और एजुकेशन इंप्रूव होगा, हेल्थ केयर इंप्रूव होगा, तो आपको टेक्नोलॉजिकल R&D बढ़ने की क्षमता बढ़ गई, तो आपकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और जो एग्रीकल्चर में सरप्लस हो गए वो सब यहाँ लग जाएंगे, और नेशन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आप देखिए, ये इतना बैकवर्ड सोसाइटी थी 1860 में मीन्स ब्रिटेन का पूरा यहाँ राज था। वैसे 1700 से ही आने लगे थे, पर 1850 में तो पूरा राज था। मतलब वो दूसरे देश में आके राज कर रहे थे, वो वहाँ की मैनिपुलेट कर रहे थे, और ये तो 39 लोग आपस में लड़ रहे थे। मतलब कितनी बैकवर्ड सोसाइटी थी। लेकिन
आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्हीं ने लीड किया, सेकंड वर्ल्ड वार इन्हीं ने लीड किया, बिकॉज ऑफ लड़ कौन सकता है, जिसके पास ताकत होगी, और ताकत कब होगी, जब आप R&D में स्ट्रांग होगे। एनीवे, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इवन हायर एजुकेशन तक कहीं कहीं जगह फ्री की गई। Now I am talking about another phenomena, Great Depression, 1929. We all know about it, Great Depression. Great Depression की मैकेनिज्म समझिए। When production is being done with machines, productivity is high. Means productivity is high and few labor are required for doing this work. This is the meaning of labor productivity. If we are not able to give job to unemployed people, what will happen? There will be less buyer. There will be less buyer. Means अब पहले बैलगाड़ी से खेती हो रही थी, अब हार्वेस्टर से हो रही, टनों में गेहूं बन रहा, लेकिन उसकी एक कॉस्ट हो गई ना। अब हार्वेस्टर से अगर आप खेती करेंगे तो एक कॉस्ट हो गई उसकी, क्योंकि आप सीड कहीं से ले रहे, पेस्टिसाइड कहीं से ले रहे, तो उसकी कॉस्ट हो गई। और अब आप कम लोग ज़्यादा सामान पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर उन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो इस गेहूं को कौन खरीदेगा? तो गेहूं को कौन नहीं खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, तो आप अगले साल प्रोडक्शन घटा दोगे। इसी तरह फैक्ट्रियों का होगा हाल, तो फैक्ट्रियां क्या होंगी? धीरे धीरे बंद होने लगेंगी या रिसेशन में जाने लगेंगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, कि वी हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बट देयर इज नो बायर एट दैट रेट विच इज प्रॉफिटेबल टू दैट कंपनी। तो वो क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन कट करेगा। जैसे प्रोडक्शन कट करेगा, लेबर और रिड्यूस हुई, तो और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो दूसरी इंडस्ट्री बंद होंगी, तो इस तरह से रिसेशन और प्रोपोगेट कर जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज वी आर लिविंग इन ए मॉनेटरी बेस्ड इकोनॉमी, तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें जॉब देना पड़ेंगे। जॉब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो रूजवेल्ट ने कहा पैसे ऐसे आएंगे, वो जो मैंने पहले बताया था। उसने रूल बदल दिया, $22 एक आउंस के अगेंस्ट छापने की जगह अब हम 34 छापेंगे, और विद इन द कंट्री ये अलाउ नहीं है गोल्ड में ट्रांसफर करना। तो उनके पास पैसे आ गए, उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, सब एजुकेशन फ्री कर दी, पब्लिक बस डिपार्टमेंट बना दिए, R&D बना दिए, और नेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, हेल्थ केयर सिस्टम सब बना दिए। मैं बस 1 मिनट इम्पीरियलिज्म की बात करूँगा, क्योंकि वैसे ये लेक्चर गांधी जयंती के आसपास रखने का प्लान था। और गांधी जी, जैसे जब मैं गांधी पीस फाउंडेशन में लेक्चर सुनने जाता हूँ गांधी जी के बारे में, गांधी जी को एक पॉइंट काफ़ी समझ में आ गया था कि जब तक ब्रिटिश राज है यहाँ पे, इस देश की भलाई नहीं हो सकती है। भले ही वो उसे बोलते नहीं थे, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के रहते देश का भला नहीं हो सकता है। अब आप देखिए ब्रिटिश ने क्या किया था। ब्रिटिश भी रूल करते थे, वो भी रोड बनाते थे, वो भी ब्रिज बनाते थे, वो भी डैम बनाते थे, वो भी रेल बनाते थे, वो भी पोर्ट बनाते थे, अभी भी बन रहे। तो फिर अंतर क्या है? ब्रिटिश ने जब आए ब्रिटिश यहाँ पे, तब पूरे दुनिया का जो GDP का परसेंटेज था वो 22 अराउंड 22 था। वो बोल रहा था कुछ आपके इधर पेपर में, कहीं कुछ लिखा रहा था, कहीं कुछ पर अराउंड 22 था। वैसे ये ड्रॉप पहले से भी हो रहा था। ये ओनली इट इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो थी, इंडियन सोसाइटी, ये एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो इसके प्रोडक्ट क्या थे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड तम्बाकू हो गई, या मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, या कॉटन के कपड़े हो गए, ये इनके प्रोडक्ट थे। और दुनिया में क्या था कि इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होने लगा था, तो इंडस्ट्रियल गुड्स आने लगे थे, तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप तो हो रहा था यहाँ पे। लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या पॉलिसी अख्तियार की जिससे कि अपना देश खराब हुआ। डिलिबरेटली टैक्सेशन बढ़ा दिया। तो टैक्सेशन किस लिए होता है? बहुत लोग तो ये कहेंगे अब सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बट बेसिकली मनी इज डिस्ट्रॉयड। टैक्सेशन ज़्यादा मीन्स कि वहाँ मनी डिस्ट्रॉय हो गई और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी घट गई, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो तो। और एजुकेशन पे खर्चा ना करो तो नॉलेज नहीं बढ़ेगी। अगर उन्होंने कुछ एजुकेशन पर खर्चा किया तो 3-4 यूनिवर्सिटी बनाई क्योंकि उन्हें बाबू चाहिए थे, और कुछ पॉलिटेक्निक बनाए क्योंकि यहाँ कैनाल बनाने थी, और उन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया। और साथ में क्या था उनके 2 उद्देश्य थे। यहाँ तो एक तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दो, दूसरा टैक्सेशन रखो ज़्यादा और इन्हें भूख के लिए तड़पा दो। तो क्या होगा? ये लेबर बाहर जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश आने से पहले
जब तक बाबर का शासन था, बाबर फैमिली का शासन था, मुगल एम्पायर बोलते हैं, बाहर से लोग इंडिया आते थे, इंडिया में बस जाते थे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते थे। ब्रिटेन आने के बाद यहाँ कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी गई फूड के बारे में खासकर, क्योंकि उन्होंने क्या है, तीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया। पहला था कॉटन, अब उसे खा नहीं सकते। दूसरा था इंडिगो, तीसरा था ओपियम, तीनों को खा नहीं सकते। तो यहाँ के फूड को अफेक्ट कर दिया, मतलब जो हम जिस पे सर्वाइव करते थे। और टैक्सेशन ज़्यादा रखा, तो यहाँ की लेबर, क्योंकि उस समय क्या थी, उन्हें दुनिया में लेबर चाहिए थी, क्योंकि जो माइनिंग है और एग्रीकल्चर उस समय लेबर इंटेंसिव होती थी। तो अफ्रीका में जितने लोग गए हुए हैं और दूसरे कंट्री में गए हुए हैं, यहाँ से लेबर की तरह वहाँ गए, तो उन्होंने डिलिबरेटली ये पॉलिसी अख्तियार की। इंडस्ट्रीज का उन्होंने कंपटीशन नहीं होने दिया। जैसे आपने सुना होगा टाटा की स्टील, JRD टाटा स्टील खोलना चाहते थे। ये कोरस एक कंपनी है UK की, इसने ऐसे कहा कि नहीं इसे खोलने ना दो, तो इन्होंने परमिशन ही नहीं दी। वो तो वार शुरू हो गया, तब उन्होंने कहा यहाँ भी स्टील बन जाने दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब ये परमिशन दी गई। शुरू में नहीं दी गई थी परमिशन। और क्या होता था, लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करो, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करो, और हाई वैल्यू एडेड इंपोर्ट करो। आपको प्रॉब्लम में रखो, हाई वैल्यू एडिशन में नहीं जाने दो। तो ये 3% आ गया था GDP अपना। वैसे अभी भी ऑलमोस्ट 3% ही है। बस लास्ट स्लाइड आ रही। इस समय 22 का डाटा है। पूरे वर्ल्ड का शेयर का GDP यूनाइटेड स्टेट्स का 25% है, चाइना का करीब 17-18% है, और इंडिया का करीब 3.37% है। ये एक तरह का पैरामीटर है। दूसरे तरह का पैरामीटर भी बनता है, एक PPP से बनता है, वो अलग है होता है, पर मैंने एक ले लिया दिखाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ, 1990 में अप्रॉक्सीमेटली 1990, उसका डाटा यहाँ शो नहीं किया मैंने, इंडिया का GDP का परसेंटेज वर्ल्ड में 1.5 to 2 के बीच में था, और चाइना का GDP 1990 में 2.2 था, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा था बस। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस तरह की पॉलिसी अख्तियार की कि आप देखिए 17.87 है। और पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी सिर्फ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, ये मेन पॉलिसी है। क्योंकि जब मनी बेस्ड इकोनॉमी हो गई और आप अगर खर्चा नहीं करोगे तो जॉब क्रिएट नहीं होंगे, जॉब क्रिएट नहीं होंगे तो GDP ग्रोथ नहीं होगी। अब कंक्लूजन्स में आ गए। सॉवरेन नेशंस आर नॉट फिजिकली कंस्टेंट, दे आर रिसोर्स कंस्टेंट। अगर पूरे देश में सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है मान लो। अब सरकार सोचे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज और खोलना है, तो क्या होगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होगा तब दूसरा खुलेगा। या सरकार सोच रही कि हमें पुलिस व्यवस्था स्ट्रांग करना है, तो कहीं से लोगों को अनएम्प्लॉयड बनाना पड़ेगा, मतलब उस सेक्टर को बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज रिसोर्स कंस्टेंट, नॉट फिजिकली कंस्टेंट। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ये पेपर तो हम चाहे जितने पेपर बनाना है, अब तो डिजिटल हो गई, अब तो बटन दबाना सिर्फ। अभी मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास डेटा है USA गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का भी डेटा है। US गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में 6.29 ट्रिलियन उनका एक्सपेंडिचर था, 6.29 ट्रिलियन एक्सपेंडिचर था, और रेवेन्यू थे, ये उनका एक्सपेंडिचर था, और रेवेन्यू मीन्स टैक्सेशन था 4.39 उन्होंने टैक्स के रूप में मनी खत्म की, डॉलर, और 6.39 उन्होंने क्रिएट किए और खर्च किए इकोनॉमी में। अब देखिए 6.39 ट्रिलियन इकोनॉमी में खर्च करने का मतलब है, अभी मैंने आपको क्रेडिट का वाले में बताया नहीं, क्योंकि इस क्रेडिट एक क्रिएशन होता है, वो बैंक करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया नहीं, क्योंकि बट उसका बेसिस यही रहता है, अगर ये मनी क्रिएट ना हो तो क्रेडिट क्रिएशन कुछ नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। 6.29 ट्रिलियन आप खर्च कर रहे हो, तो आप वहाँ की इंडस्ट्री को इतनी डिमांड क्रिएट कर रहे हो। तो आप देखिए यहाँ जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के डाटा जॉब मिल रहे हैं अमेरिका वगैरह में, या यहाँ से अमेरिका कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की कंपनियों को इतना ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो रही है पर ईयर, ये तो गवर्नमेंट कर रही है, और क्रेडिट क्रिएशन करके अलग हो रही। तो 6.29 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं, 4.39 ट्रिलियन टैक्स के रूप में वो खत्म कर रहे हैं। इट मीन्स अराउंड $2 ट्रिलियन डिफिसिट कर रहे हैं। मतलब जो 2 ट्रिलियन, मैंने आपको एक कर्व बनाया था ना, ये कर्व यहाँ है। इस समय लोगों के पास पैसा इतना है, अब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा पता, $2 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा, और यहाँ का $2 ट्रिलियन और यहाँ हो जाएगा।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अभी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स बट जस्ट गिविंग द फैक्ट्स। गवर्नमेंट इंडिया का लास्ट ईयर का बजट 44.43 लाख एक्सपेंडिचर है। तो अब ये ट्रिलियन की जगह मान लो यहाँ पे कोई एक्स अमाउंट थी लोगों के पास, ये अब 44.43 लाख उसने खर्च किया उस साल, और 27.28 लाख टैक्सेस में ख़त्म किया। तो कितना बचा, करीब करीब 17 लाख। तो 17 लाख रुपए यहाँ बढ़ जाएंगे और 17 लाख इनका डिफिसिट बढ़ जाएगा, ये कर्व यहाँ चला जाएगा। तो आप अब इतने पैसे से रिसोर्स मैनेज कर रहे हो। तो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है वो किसका फंक्शन है? ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर पॉलिटिशियन, ज़्यादातर पॉलिसी मेकर अपने देश में या दूसरे देशों में ये सोचते हैं इट इज़ फंक्शन ऑफ टैक्सेशन, इट इज़ फंक्शन ऑफ टैक्सेशन। जितना पैसा आया और जितनी हमारी बाजार से उधार करने की क्षमता है उसका फंक्शन है, जबकि ये किसका फंक्शन है? रिसोर्सेज। अगर देश में कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसे जॉब दे दो, उसे सफाई करवा लो, उसे पढ़ाई करवा लो, उसे कुछ काम करा लो, तो देश की तरक्की हो जाएगी। सो इट इज़ फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री, नॉट इनकम एंड नॉट टैक्सेशन। सो प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी ये होती है एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, और मॉनेटरी पॉलिसी होती बेसिकली, अभी हम कहते हैं ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी हर सेंट्रल बैंक की अपनी मोनोपोली है। जैसे हम कहते हैं और कई इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का डिफिसिट ज़्यादा हो गया मीन्स उन्हें बाजार से ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, ये लॉजिक देते हैं वो। जबकि ये मोनोपोली होती है सेंट्रल बैंक की। भारत सरकार आरबीआई जिस दिन जीरो रखना चाहे जीरो रखेगा, दुनिया में है भी, कई जगह माइनस है, कई जगह ये प्लस में है, कई जगह ज़्यादा है। ये मोनोपोली होती है वहाँ की सेंट्रल बैंक की, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला उद्देश्य होना चाहिए जो मैंने शुरू में ही बताया था, मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो ही आउटपुट होगा। दूसरा, जब एज ए नेशन रहना है, और अभी हमें नेशन रहना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, अपने देश में फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, अपना देश में इतनी फूड पैदा होना चाहिए कि हम सब खा सकें। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। मतलब लकीली इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बोलते हैं इसे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अब हम ग्लोबल सिक्योरिटी में अपनी तेल को इंपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपी आल्सो। पहले तो हमें फोर्स किया जाता था इंपोर्ट इन डॉलर, बट दैट इज अनदर एस्पेक्ट, वो पॉलिसी अलग किसी दिन बात करेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी, और फिर नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मीन्स R&D में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर देश में R&D डेवलप नहीं होगी, जैसे आप देखिए अपने देश इंडिया एज ए नेशन, ये जब बाबर आए, ये उज्बेकिस्तान के लोग थे जी, उज्बेकिस्तान से ये अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से फिर इन्होंने यहाँ हमला किया, और ये उज्बेकिस्तान थे, मंगोल थे बेसिकली। ये काफ़ी बड़े एरिया में रूल करते थे और इनकी यूनिट ऑफ अकाउंट चलती थी, मतलब एक तरह की करेंसी चलती थी। तो मीन्स दे वेयर इन पोजिशन टू मैनेज रिसोर्सेज एट वेरी वाइड लेवल। लेकिन उन्होंने क्या किया, R&D पे खर्च ही नहीं किया। जबकि उधर यूरोप में क्या हो रहा था, उसी पीरियड में यूरोप में बहुत ज़्यादा R&D पे खर्च हो रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट ही कर रहा था, वहाँ स्टेट कर रही थी, कुछ इवन चर्च करती थी, चर्च कुछ बातों पे लड़ती भी थी लेकिन ज़्यादातर बातों पे खर्च भी करती थी। और कुछ जो ट्रेड करने आते थे ये लोग, अब उन्हें नेविगेशन करना होता था। तो नेविगेशन के लिए वो जैसे जो गैलीलियो वगैरह ने खोजा था, बेसिकली वो नेविगेशन से प्रिंसिपल आ रहा था। वो नेविगेशन वाले कुछ उन्हें बता रहे थे और उससे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि धरती घूमती कि सूरज घूमता। तो उन्होंने फिर वो प्रिंसिपल बताया कि ये ऐसे होता है, पर वो नेविगेशन के कारण से था। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा था R&D में। तो वहाँ नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, तो नई नई मशीनरी आ रही थी, तो उन्हें टेक्नोलॉजिकल एज आ गई थी। इनकी आर्मी, ये आर्मी पे जोड़ देते थे, बहुत बड़ी आर्मी थी, मुगलों की बहुत बड़ी आर्मी थी। लेकिन ये सिर्फ मुगलों का नहीं था, इस समय का माइंडसेट ही इनका ऐसा था। उस समय के अगर आप चाइना का देखो, चाइना भी बहुत बड़ा स्टेट था, उनका GDP अपने से भी ज़्यादा था उस पीरियड में, उनके पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसी तरह एक ऑटोमन एम्पायर था, जैसे टर्की बोलते हैं आजकल, उनके भी बहुत बड़ा एरिया था और बहुत चलता था, लेकिन वो भी बस आर्मी पे ध्यान देते थे, कभी इनोवेशन पे नहीं ध्यान दिया। अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे हमेशा, खासकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। और जब इस तरह के खर्चे होंगे, गवर्नेंस होगी, क्योंकि आप पूरे देश को मैनेज करना है, तो गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया तो खर्च करते रहोगे, उससे आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। R&D पे हो गया खर्च, DRDO बन गए, हाँ 100 करोड़ खर्च हो गया, 200 करोड़ खर्च हो गया, आउटपुट कुछ नहीं निकला, पता चला। मतलब इफ़ यू डोंट पुट, पहले तो जॉब
क्रिएट करो ना गवर्नेंस। गवर्नेंस तो उसकी आएगी जब आप उसे पहले तो बनाओ ना सिस्टम, कि सिस्टम ये है, उसका गवर्न किया जाए। कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक एंड नॉट डेट लेवल डिफिसिट, मतलब डेट लेवल डिफिसिट ये सब फ्रॉड बातें हैं। इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन पे ध्यान। अगर मान लो गवर्नमेंट ने खर्चे कर दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, दिल्ली एयरपोर्ट जैसा, क्या होगा? तो पता चला इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाएंगी, क्योंकि पता चला जॉब कहाँ गए क्रिएट, अमेरिका चले गए। और आपने मान लो हर गांव में 2 स्कूल बना दिए, एक मेडिकल सेंटर बना दिया, वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप कर ली, मीन्स 20,000 30,000 50,000 के बहुत सारे जॉब क्रिएट किए, तो क्या होगा? यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो हेयर आई स्टॉप एंड वन लास्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, बेसिकली मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कहता था और अभी भी कहता हूँ कि वी शुड परसू दिस पॉलिसी। एक जॉब गारंटी स्कीम बनाओ जिसमें मिनिमम 20, क्योंकि इंडिया की थोड़ा पुराना डाटा है, 67% हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपीज़ मंथ से कम है। अगर उनके 10,000 रुपीज़ से मंथ इनकम कम होगी, बताओ वो क्या इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदेंगे, क्या सामान खरीदेंगे, क्या एग्रीकल्चर का सामान खरीदेंगे, क्या सब्जी खरीदेंगे, क्या मीट खरीदेंगे? अगर आप उसकी इनकम बढ़ा दोगे, जॉब गारंटी स्कीम ऐसी आ गई, 20,000 सरकारी देती, तो प्राइवेट में क्या होगा? 20 से ज़्यादा ही होगा ना। तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ गई तो इंडस्ट्री आएंगी, दुकानदार आएंगे, सर्विस वाले आएंगे, अपनी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। फिर ओल्ड लोगों को पेंशन देना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ पे पूरा गवर्नमेंट को खर्च कर देना चाहिए, जिससे कि अपना खर्चा बच जाएगा। हमारा खर्चा बचेगा तो हम इस पे कुछ सामान खरीदेंगे, तो सामान खरीदेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। फिर ब्याज मुक्त धन, मतलब इंटरेस्ट फ्री। जैसे ब्याज क्या है? अगर देश में स्टेट पावर शो ना करे, हमारे पास आ गए 100 करोड़ रुपए, अब हम क्या चाहते हैं? हम तो बैठ के खाएं और इस पे हमें 12% ब्याज मिले या 14% ब्याज मिले, 20% ब्याज मिले। तो हम ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे, अरे देश में पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, भाई पैसे लेना तो आओ हमारे पास। तो ये जितना फाइनेंशियल सेक्टर है, पूरे पेपर में आप देखो, पढ़ लीजिए। इकोनॉमिस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट से मिल दीजिए। नोबेल प्राइज़ वाले, कई को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो कहते हैं भाई पैसे की शॉर्टेज है, पैसे की शॉर्टेज है, क्योंकि ये इन्हीं द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हाइट, हमें 18% ब्याज मिलता रहा बैठे बैठे। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट 0 हो सकता, माइनस हो सकता, प्लस हो सकता, गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये करेंसी क्या है? सिर्फ नंबर है गवर्नमेंट के लिए। हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये नंबर है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं भाई, जो एग्रीकल्चर में करेगा या जो जरूरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में करेंगे, उन्हें हम 0% पे देंगे, और 10 साल की किस्त बांध देंगे, 20 साल की किस्त बांध देंगे। या कोई घर लेना चाहता है, पहला घर का हम 0% पे देंगे आपको, आपकी 20 साल की किस्त हो गई, 30 साल की किस्त हो गई, आप पटाते रहो। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग तरह से बढ़ेंगे। बस यहाँ पे मैं रोकता हूँ।